Good morning to all the students of class 9. Most welcome to all of you in this video lecture. This is Karnesh Misra, subject teacher of social study from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear students, today we will revise the first chapter of history, that is the French Revolutions. So dear students, last day we have discussed about the consequences of the French Revolutions. Today we will discuss about the French society during the late 18th century. After that we will also cover or discuss the topic the struggle to survive. Okay dear students, so let's start. Two topics today we will discuss: French society during late 18th century. And second we will discuss the struggle to survive. Struggle to survive. Okay dear students, so let's start. Dear students, in the year 1774 Louis XVI of Bourbon family of the king ascended to the throne of France. सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ. He was 20 years old and married to the Australian princess Marie Antoinette. उस समय लुई 16वां की उम्र जो है मात्र 20 वर्ष थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ. Upon his accession, the new king found an empty treasury. After getting married, Louis XVI wanted to know the status of treasury. He found the treasury empty. So what was the reason of treasury being empty? Let's know about it. प्यारे विद्यार्थियों, राज्यारोहण के समय लुईस 16वां ने राजकोष को खाली पाया. इसका क्या कारण था, आगे के क्रम में अब हम लोग जानेंगे. Long years of war had drained the financial resources of France. लंबे चल आ रहे और लंबे चलते युद्धों के कारण, लंबे समय से चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे. Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. साथ ही साथ वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत को बनाए रखने की जो फजूल खर्ची का बोझ था वह अलग से जो था. लुई 16 के शासनकाल में, अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन. लुईस 16वां के नेतृत्व में के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी. सो द फ्रांस हैज हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेट देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी, दैट इज ग्रेट ब्रिटेन. ब्रिटेन वाज द एनिमी ऑफ बोथ फ्रांस एंड अमेरिका. The war added more than $1 billion livres to a debt that had already risen to more than $2 billion leverage. So dear students, इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था. लिब्रे इज द करेंसी ऑफ द फ्रांस. So this war added more than $1 billion livre to
to a debt that had already risen to more than 2 billion leverage. So the lenders who gave the state credit now began to charge 10% of interest on loan amount, which was really a very high rate of interest. तो जो सरकार के कर्जदाता थे अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे, जो कि बहुत बड़ा जो है परसेंटेज ऑफ जो है इंटरेस्ट था। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। एज अ रिजल्ट डियर स्टूडेंट्स, so the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on the interest payments alone to meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or university. The state was forced to increase the taxes. So dear students, इसके अलावा अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी जो है क्या है नाकाफी था, Yet even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 states. जो फ्रांसीसी समाज था, प्यारे विद्यार्थियों, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। French society in the 18th century was divided into 3 states and only member of 3rd state paid taxes. The society of the state was a part of feudal system that dated back to the Middle Age. Dear students, वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। The term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789, अर्थात प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। The term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789. Figure 2 shows how the system of state in French society was organized. Dear students, in figure 2 in your book it is given that how French society was divided. फ्रांसीसी समाज चित्र 2 फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। Peasant made up about 90% of the populations. However, only a small number of them owned the land they cultivated. पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसान की संख्या बहुत कम थी। यानी कि बहुत कम किसान थे जिनके पास अपनी खुद की जो है जमीन थी। अधिकतर जो है जमीन कुलीन और पादरी वर्ग के लोगों के पास थी और कुछ ही किसान थे जिनके पास खुद की अपनी जमीन थी। अधिकतर किसानों के पास खुद की अपनी जमीन नहीं थी। Peasants made up about 90% of the populations. However, only a small number of them owned the land they cultivated. About 60% of the land was owned by the noble, the church, and other rich member of the state. और लगभग 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग मीन्स नोबल एवं पादरी वर्ग मीन्स प्रीस्ट के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। So dear students, about 60% of the land was owned by the nobles, church and the other rich members of the 3rd states. The member of first 2 states, that is the clergy and nobility, enjoy certain privileges by birth. प्रथम जो है 2 वर्ग कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के जो सदस्य हैं
के जो लोग थे उन्हें कुछ जन्मजात विशेषाधिकार प्राप्त थे। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड, वो जन्मजात अधिकार प्राप्त थे। द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ दीज वाज एक्सेप्शंस फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। So dear students, the member of the first two states, that is the clergy and nobility, enjoy certain privileges by birth. The most important of these was exemptions from paying taxes to the states. The nobles further enjoyed feudal privilege. जो कुलीन वर्ग के लोग थे उन्हें कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। फ्यूडियल प्रिविलेज मीन्स होता है सामंती विशेषाधिकार, तो उन्हें सामंती विशेषाधिकार प्राप्त थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करते थे। These included feudal dues which they extracted from the peasant. Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his houses and fields, to serve in the army and to participate in the building roads. और ये जो किसान थे वह अपने स्वामी की सेवा करने के लिए, उनके घर और खेतों में काम करने के लिए, सैन्य सेवाएं देने के लिए, सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। The church too extracted its share of taxes called tithe from the peasants. चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइथ, धार्मिक कर के रूप में जो है वसूलता था। And finally, all members of the third states had to pay taxes to the state. ऊपर से तीसरे स्टेट के जो तमाम लोग थे, जो जनसाधारण लोग थे, उनको जो है सरकार को कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। These included a direct tax called tithe and number of indirect taxes. So dear students, tithe is a tax levied by the church comprising 1/10 of agriculture produce. tithe जो है एक तरह का जो है धार्मिक कर है, जो कि फ्रांस की जो है जनसाधारण जो है जनता को, चर्च को जो है धार्मिक कर्म के रूप में देना पड़ता था। यह उनकी कृषि की उपज का जो है 1/10 होता था। और टैली इज अ डायरेक्ट टैक्स विच थर्ड स्टेट्स ऑफ पीपल्स हैड टू पे डायरेक्टली टू द स्टेट्स। और टैली प्रत्यक्ष कर था, जिसे जो है जनसाधारण को जो है सरकार को जो है राज्य को जो है देना होता था। इसके अलावा कुछ अनेक जो है अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। डियर स्टूडेंट्स, सो अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस which were levied on the articles of everyday consumptions like salt or tobacco. The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third states only. इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का जो सारा बोझ था वह करों के माध्यम से जनता, आम जनता वहन करती थी। Now dear students, we will study about the struggle to survive. जीने का संघर्ष। फ्रांस की जो जनसंख्या थी वह सन 1715 में 2.3 मिलियन थी, जो कि सन 1789 में बढ़कर 2.8 मिलियन हो गई। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 millions in 1715 to 28 millions in 1789. Dear students, फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 23 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 28 करोड़ हो गई, 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः
क्या हुआ? दिस लेड टू द रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। जनसंख्या बढ़ने से अनाज के उत्पादन की मांग बढ़ी। Productions of the grains could not keep pace with the demand। अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी जो तेजी से जो बढ़ी। तो जिस तरह से जनसंख्या तेजी से बढ़ी उस हिसाब से उसके अनुपात में जो है कृषि उत्पादन नहीं हो पा रहा था, भूखमरी की समस्या थी। अधिकांश लोग मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमतों में तेजी अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेजी से जो वृद्धि हुई। सो द प्राइसेस ऑफ द ब्रेड which was the staple diet of majority rose rapidly। So bread was the staple diet of the people of the France and the price of the bread which was the staple diet of the majority rose rapidly। वो तेजी से जो वृद्धि हुआ ब्रेड की कीमत में। Most workers were employed at laborers in the workshops। बहुत से जो कामगार थे कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। So most of the workers employed as a laborer in a workshop whose owner fixed their wages, but wages did not keep pace with their rise in price। लेकिन ये जो उनकी मजदूरी थी महंगाई के दर से नहीं बढ़ रही थी। महंगाई बढ़ गई थी पर किसानों की जो मजदूरी में जो वृद्धि नहीं हुई थी। उनके लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था। वो अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण कर पाने में जो सक्षम जो नहीं थे। ऊपर से मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो गई थी। फ्रांस की जनसंख्या जो बढ़ गई थी और जनसंख्या के बढ़ने से कृषि उत्पादन की जो मांग बढ़ गई थी पर उसके अनुपात में जो अनाज का जो उत्पादन नहीं हो पा रहा था। और क्या था? इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अमीर और गरीब की खाई चौड़ी होती गई। So the wages did not keep pace with the rise in price, so the gap between the poor and rich widened। Things became worse whenever drought or hail reduced the harvest। और स्थिति और बद से बदतर तब हो गई जब सूखा या ओले के प्रकोप से पैदावार नष्ट हो गई। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम बात थे। So dear students, things became worse whenever drought or hail reduced the harvest। This led to subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime। Subsistence crisis क्या है? जीवन संकट। When the peoples are not able to meet hand to mouth, are not able to fulfill the basic needs of life, or you can say that an extreme situations where the basic means of livelihood are endangered, then that situation is known as the subsistence crisis। And this were the very common in the France during the old regime। और प्राचीन राजतंत्र में यानी कि 1789 पहले फ्रांस में यह आम बात थी। तो फ्रांस की जो जनता थी वह एक बड़े बुरे दौर से जो गुजर रही थी। आबादी बढ़ गई थी। इसके फलस्वरूप जो है अनाज के उत्पादन की मांग बढ़ी, पर बढ़ती जो है आबादी के जो है तुलना में जो अनाज का उत्पादन नहीं हो पा रहा था। लोगों का मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेजी से जो वृद्धि हो गई थी। साथ ही साथ सूखा पड़ने के कारण और ओले के प्रकोप से फसलें नष्ट हो गई थी। भूखमरी की रोजी रोटी के संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। फ्रांस की जनता त्रस्त थी। ऊपर से आम जनता को जो है राज्य के सारे करों का जो है भार वहन करना पड़ता था। उन्हें जो है टाइप नाम का धार्मिक कर चर्च को देना होता था, जो कि उनकी कृषि उत्पादन का 1/10 था। और टाइल नाम का कर जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है राज्य को देना होता था। इसके अलावा उनके ऊपर कुछ अप्रत्यक्ष कर भी थे, जो कि डेली उपयोग की उपभोग की जो वस्तुएं जैसे नमक और तंबाकू के ऊपर जो है
लगा हुआ था। एंड ऑल दिस टैक्सेस वेयर पेड ओनली बाय द थर्ड स्टेट्स ऑफ द पीपल्स, और वहीं पर जो है फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स ऑफ द पीपल जो नोबल और क्लर्जी थे, they were getting privilege on the basis of their birth. They had not to pay any kind of taxes. So these were the problems of the peoples. ये जो है समस्या थी। और उसी समय जो है प्यारे विद्यार्थियों, वहाँ की जो जनसंख्या थी, वहाँ की जो जनता थी वो काफ़ी जो है त्रस्त हो गई, काफ़ी जो रुष्ट हो गई। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि उस समय जो है लुईस 16 जो है राजकोष जो कि खाली पड़ गया था उसको भरने के लिए जो कर को में वृद्धि करने का जो है आइडिया जो है लेकर आए, जब कि जनता पहले से ही अत्यधिक जो है कर का जो है भार वहन कर रही थी। So in the past, peasants and workers had participated in the revolts against increasing taxes and food scarcity. प्यारे विद्यार्थियों, पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विशेष एंड इन प्रिविलेज नंबर 3। Growing middle class and in vices, class in vices and into privilege. So dear students, in the past peasants and workers had participated in the revolts against increasing taxes and food scarcity. पहले से ही जो है किसान और कामगार बढ़ते जो है कर और अकाल के लिए यानी फूड स्कैर्सिटी के लिए जो है विरोध कर चुके थे। बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर्स, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के साधन और कार्यक्रम नहीं थे उस समय। क्या कारण था? दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट्स हु हैड बिकम प्रॉस्परस एंड हैड एक्सेस टू द एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज, और इसकी जो जिम्मेदारी थी वो तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। The 18th century witnessed the emergence of social group termed the middle class who earned their wealth through an expanding overseas trade and from manufacturing of goods such as woolen and silk textiles that were exported or brought by the rich members of the society। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का जो है उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग मिडिल क्लास कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारी व्यापार ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। डियर स्टूडेंट्स, इन एडिशन टू द मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, द थर्ड स्टेट्स included professions such as lawyer or administrative officials। तो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी लोग बहुत पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मजात विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। So all of these were educated and believed that no groups in society should be privileged by birth. They believed that privilege must be based on skill and knowledge. It should not be based on the basis of birth। Okay? तो उनका ऐसा मानना था। Rather a person's social positions must depend on his merit। उनका ऐसा मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मजात विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए, न कि उसके जन्म के आधार पर होना चाहिए। तो ये जो
These ideas envisaging a society based on freedom and equal law and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke, Jean-Jacques Rousseau. ये जो समानता ये स्वतंत्रता और समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जिया-जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपनी बुक्स इन हिज बुक टू ट्रेटिस ऑफ द गवर्नमेंट, लॉक sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. अपनी पुस्तक टू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रोसुआ कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, proposing a form of government based on social contract between people and their representative. रोसुआ ने, हेलो डियर स्टूडेंट्स, रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधि के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मोंटेस्क्यू ने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉस नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। इन द स्पिरिट ऑफ लॉ, मोंटेस्क्यू proposed a division of power within the government between the legislative, the executive, and the judiciary. This model of government was put into force in the USA after the 13 colonies declared their independence from Britain. इस तरह की जो सरकार थी, प्यारे विद्यार्थियों, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया, तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिका संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। The American Constitution and its guarantee of individual right was an important example for political thinker in France. The idea of these philosophers were discussed intensively in saloons and coffee house and spread among people through the books and newspaper. These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privilege. तो दार्शनिकों के इन विचारों को कॉफी हाउस व सैलून की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करते और पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों और अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सकें। इसी समय लुई 16 के द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरोध गुस्सा भड़क उठा। तो इसी समय राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए लुई 16 द्वारा लिया गया जो कर में वृद्धि का जो निर्णय था, इससे वहाँ की जो आम जनता थी काफ़ी गुस्सा हो गई। उनके अंदर जो है विद्रोह की भावना जो है भड़क उठी। ओके डियर स्टूडेंट्स, that's all today. Thank you for listening me. Have a great day to all of you. More we will discuss in the next video lectures. In the next video lectures we will study or we will discuss or we will revise the outbreak of the revolutions. इसके बाद हम लोग क्रांति की शुरुआत के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फ्रांस का समाज जो 18वीं सदी में कैसे जो है 3 वर्गों में विभाजित था और वहाँ पर लोगों की आम समस्याएं क्या थी, लोग राज्य से, सरकार से क्यों अत्यधिक जो है असंतुष्ट थे, फ्रांस का राजकोष खाली क्यों हो गया था, इसके प्रमुख कारण क्या क्या थे। वंस अगेन थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।